So can you imagine a Swiggy delivery boy to a Swiggy developer Bangalore में काम करता है and he's just a 12th standard student but you ये भारत में सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन से करियर में है? 65% of the jobs the generation Z जो करने वाले हैं फ्यूचर के लिए कौन सी जॉब सबसे अच्छी है? तो डोंट गेट डिसहार्टेंड मुझे मेरा ब्रांच नहीं मिला है आप हमेशा माइनर कर सकते हो अंडर NEP 2020 जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बढ़िया है। मैंने अगर मान लो कि IIT मेरा क्रैक नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या करियर खत्म हो गया? मुझे बताना चाहता हूँ हार्ड स्किल्स विल गेट योर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड सॉफ्ट स्किल्स इज वेयर यू विल क्रिएट एन इम्पैक्ट विद द इंटरव्यूअर टू गेट दैट जॉब। नाउ गूगल और अमेजोन और एप्पल ये स्टूडेंट्स में क्या देखते हैं? इंग्लिश इज माय व्यापार भाषा। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो कैन वी डिस्कस अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग? पहले है जूम। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हाँ। जूम रीडिंग चैलेंज और जूम स्पीकिंग चैलेंज। पैशन को कैसे फिगर आउट करें ये आज टेल यू अबाउट गूगल। दे हैव समथिंग कॉल्ड गूगलीनेस। हाँ, गूगलीनेस। उसमें वो क्या चेक करते हैं? कोई अगर आपका कोड हो जिससे बच्चों को फायदा तो बताओ, हम डिस्क्रिप्शन में जरूर डालेंगे। पहले चीज है इट इज क्रिटिकल थिंकिंग, सेकेंड इज क्रिएटिव थिंकिंग, थर्ड इज क्यूरियोसिटी। इनफैक्ट वी स्टॉप यूजिंग द वर्ड सॉफ्ट स्किल्स, हम इसको पावर स्किल्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स कुछ और नहीं सोचेंगे इसके बारे में, ईट स्लीप कोड वही करेंगे एंड रिपीट। योगेश सर कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, भारत में सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन से करियर में है? Good question, Archit. A question I'm sure it is there with all students and also people who are passing out. But I want to start with one quote by Charles Darwin, who बोला है, "It's not the strongest of the species or the most intelligent that will survive. It is the one that is adaptable to change." We'll dwell upon it a little later. My second statement I want to make is, career is a marathon. It is not a sprint. You and me are going to work for the next at least 25, 30 or even more years. So हमको not like a sprint where the start is very important, right? So we need to look at whether we have that capability to run a marathon for the next 25, 30 years. So talking about it, today the highest paying jobs are in 3 to 4 fields. Of course, technology, you must be hearing always. The second is management, consulting में भी है, finance में है, post COVID a lot of traction in healthcare. So these are the top 4 broad domains that you can look into it. We can double down on each one of them, but these are the largely 4 domains that you can look into it. Okay. फ्यूचर के लिए कौन सी जॉब सबसे अच्छी है? So I just want to share with you an interesting report by World Economic Forum. It said that 65% of the jobs the generation Z जो करने वाले हैं अभी तक पता नहीं क्या jobs आएगा, and 45% of the jobs which are being done today will get automated. So that means it's not that there's not going to be jobs in the future, but that those jobs would require different set of skills. Again, as I told you, in these 4 domains, whether it is technology, finance, management, healthcare, there are a lot of opportunities. In each of these segments, the salary level, the growth levels are a little different. Why technology is in so much of demand is because of the growth prospects. Correct. And especially the startup ecosystem pays very handsomely for young graduates in technology, and that is why the younger students who are graduating, they want to work in the Amazon, the Google of the world. But having said that, if you're good in your domain, I think it's not just the starting salary, you need to look into it. How does your career take forward in the next 3, 5, 10 years is important. Yes. अब बात करते हैं कि किसी को हाईएस्ट जॉब सैलरी चाहिए अपने करियर में, तो उसकी मेंटलिटी कैसी होनी चाहिए और उसके पेरेंट्स की एक माइंडसेट कैसा होना चाहिए? Yeah, I think it's a good question that you have asked. If you look at it, if you want to get a good career, there are several things that goes into it. One is, do you have the requisite skill set? Very important, right? So you get paid for your skills. But it's not just the skill set, it's also the mindset that you need to bring it to the job.
सो एक पार्ट हो गया आपका स्किल सेट और माइंड सेट. हाँ. द सेकेंड पार्ट इज देयर अ डिमांड फॉर सच जॉब्स, राइट? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई मे बी वेरी गुड एट इट, बट there is no demand for such jobs, then you may not be paid very well. Please remember, salary is a function of three things: demand, supply, and productivity. I want to reiterate because a lot of young learners are not sure about it. It is demand, supply, and productivity. Why is it there is so much of demand for technology jobs today? Because why technology companies pays such high salaries? Because there is a demand and there is a shortage of supply. Plus, these young boys and girls, when they build that product, it can reach to millions of people. So the productivity is very high. Right? So I just want to ask you an example. Why is a 4-year BTech computer science engineer gets paid more or by 4-5x compared to a civil engineer? The civil engineer also does a 4-year program. In fact, there are many branches in engineering which are much tougher than computer science. Correct. Take for example electrical engineering, electronics, very, very tough course. But they fall under core. But why is it that they go? Because it is the demand, supply, and productivity. So if anyone is only interested in terms of the salary, then they may have to pick up that particular segment, right? Yeah. But as I told you, eventually this cycle will keep happening. So already we saw that healthcare is booming, and you have finance is booming. Apart from this, even if you look at it, corporate law in India is really improving. You know, today, earlier law, matlab you have to go to the court and present the client. Correct. But today, corporate law is a fantastic career. Supply chain, right? India, as it going to become a manufacturing hub, the supply chain professionals are going to pay. I think in the next 5 years, you're going to see a lot of new career options that is going to emerge, and I'm sure we will be ready for that. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सी हार्ड स्किल्स पे फोकस करना चाहिए? ओके, सो अर्चित, जैसे मैंने पहले ही बताया, इट डिपेंड्स ऑन द डोमेन. जैसे आप टेक्नोलॉजी ले लीजिए, उसका एक थोड़ा हार्ड स्किल्स होता है. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल, इफ यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. इफ यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक जावास्क्रिप्ट, यू नीड टू बी गुड एट इट. सिमिलरली डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर करना चाहिए. सो ये सॉफ्टवेयर का हो गया. ऑफ कोर्स अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है AI/ML, राइट? सिमिलरली AI/ML का जो डोमेन स्किल्स है उसको ऊपर फोकस करना चाहिए. अनदर थिंग दैट इज गोइंग टू रियली एमर्ज इज साइबर सिक्योरिटी. जैसे एज यू नो दैट इतना साइबर अटैक्स हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी में देर आर वेरी स्पेसिफिक डोमेन स्किल्स चाहिए, कुछ सर्टिफिकेशन आपको लेने का है. सो द यंग लर्नर्स एक पर्टिकुलर डोमेन चूज कर सकते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी चूज कर सकते हैं, एंड उसके ऊपर डबल डाउन करके ओवर द 4-5 years when they are studying, उसके ऊपर दे कैन पिक अप दोज हार्ड स्किल्स. सिमिलरली, जैसे मेरा दूसरा फेवरेट डोमेन है मैनेजमेंट कंसल्टिंग. उसके लिए it depends what kind of consulting you want to do. You want to do strategic consulting या you want to do the operation side. तो उसके लिए जो डोमेन चाहिए उसके ऊपर you can go deeper and deeper and deeper, and I'm sure today the availability, access is very high. जब मैं पढ़ रहा था, the only way I can learn is go to library or talk to my seniors. But today, podcasts like yours, YouTube channels, the edtech platforms, the many of the world's leading edtech platforms, like whether you take Harvard or Stanford, you have plethora of access for information. Today, I think young generation के लिए information overload है मेरे हिसाब से. तो उस information को वो थोड़ा ध्यान से देख के, थोड़ा explore करके, आई थिंक वही सबसे बड़ा एडवांटेज है. जब आप एक कॉलेज पे जाते हो, आपके पास 4 साल है, उस 4 साल में आप एक्सप्लोर करो, स्पेशली द फर्स्ट ईयर. इसीलिए देखो, अब जो मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, मोस्ट कॉलेजेस फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं. कोई फिजिक्स पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, इवन दो उसका इवेंचुअली इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस पे होता है. एक्सप्लोर करो, आपको पता नहीं क्या इंटरेस्ट आएगा. सोचो आपको डेटा में इंटरेस्ट आ रहा है, मैथ चमकता है, तो उसके ऊपर डबल डाउन करो. सो आई थिंक द फर्स्ट ईयर शुड बी एन एक्सप्लोरेटरी ईयर. यस. तो ऐसे नहीं कि इंडिया में क्या होता है, बिकॉज ऑफ ह्यूज सप्लाई एंड स्ट्रिंजेंट कट ऑफ, जिस ब्रांच आपको चाहिए वो ब्रांच नहीं मिलता है. तो कोई
इलेक्ट्रिकल करना चाहता है, he may settle for metallurgy or material sciences. But who's stopping him from learning today? इसीलिए बहुत सारा कॉलेजेस में मेजर और माइनर आ रहा है, तो माइनर करो. आई नो अ स्टूडेंट सिविल इंजीनियर है बट ही इज माइनरिंग इन AI. तो कैन यू सी इस स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होगा, हिज रेज्यूमे इज गोइंग टू बी वेरी यूनिक. आई एम ए सिविल इंजीनियर बट माइनर इन AI. आई एम श्योर he is going to do very well in the field. So I think this combination is very important. So don't get disheartened. मुझे मेरा ब्रांच नहीं मिला है, आप हमेशा माइनर कर सकते हो अंडर NEP 2020 जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, बढ़िया है. सो वेयर इन विच दिस माइनर डिग्रीज कैन बी पिक्ड अप. सही बात है सर. सॉफ्ट स्किल्स कौन सी सीखनी चाहिए? ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है. इनफैक्ट एट मसाई स्कूल हमने एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया है कॉल्ड CSBT करके, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग करके. मैं ये बताना चाहता हूँ, हार्ड स्किल्स विल गेट योर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड. सॉफ्ट स्किल्स इज वेयर यू विल क्रिएट एन इम्पैक्ट विद द इंटरव्यूअर टू गेट दैट जॉब. एंड सॉफ्ट स्किल्स, इनफैक्ट वी स्टॉप्ड यूजिंग द वर्ड सॉफ्ट स्किल्स, हम इसको पावर स्किल्स बोलते हैं. Okay. Because it helps you to unleash your potential. It is a life skill. It is a thrive skill. आप एक काम पे अच्छा करना चाहिए तो it do. तो मैं थोड़ा उसको बैक स्टेज लेना चाहता हूँ. ये जो हार्ड स्किल इज वेरी इजी टू लर्न एंड सॉफ्ट स्किल्स इज वेरी हार्ड टू लर्न. Yes. एंड सॉफ्ट स्किल्स बेस्ट टाइम पिकअप करने के लिए दो बिग अपॉर्चुनिटीज मिलता है. एक, जब आप हाई स्कूल में है, योर एज इज बिटवीन 13 to 18, 8, 9, 10th, 11th, 12th. उस टाइम पे आप फ्री माइंड हो एंड यू आर नॉट कैरिंग एनी बैगेजेस, एंड आपका जो माइंड और बॉडी है, यू कैन पिक एनी लैंग्वेज, यू कैन मेक फ्रेंड्स, यू कैन लर्न फ्यू थिंग्स. तो उस टाइम पे आप फोकस कर दीजिए. द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज व्हेन यू गो टू कॉलेज. तो जब आप हाई स्कूल जाते हो, सिमिलरली यू विल हैव सिमिलर काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. आप सोचो, आप भोपाल से है ना, तो सर. आप भोपाल में कोई भी जगह चलिए, मोस्ट ऑफ देम पीपल वुड बी फ्रॉम मध्य प्रदेश या थोड़ा वो इधर आएंगे. जब आप कॉलेज के लिए आप भोपाल से, लेट्स से यू केम टू बैंगलोर और आप इंजीनियरिंग कर रहे हो बैंगलोर पे, एंड हियर यू विल हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. सो एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा. सो इफ यू वांट टू बिल्ड सॉफ्ट स्किल्स, देयर आर टू इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी. वन इज इन योर हाई स्कूल, और दूसरा चीज़ है जब आप कॉलेज पे जाते हो. ये सॉफ्ट स्किल्स जो है, जब आप काम करना शुरू करते हो ना, बहुत मुश्किल है सीखने के लिए. क्योंकि उधर कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है सिखाने के लिए. और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिंड्रोम हो जाता है, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम. तो इसलिए आप क्या करेंगे, चुपचाप बैठेंगे. तो टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, देयर आर 138 सॉफ्ट स्किल्स, मगर मैं आपको 5 चीज़ बताना चाहता हूँ. यस, एज पर द स्टडी बीइंग डन, आप जाके सर्च कर सकते हो. देयर आर 138 सॉफ्ट स्किल्स. तो कुछ ना कुछ रिलेटेड है, बट ये 5 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हाइजीन फैक्टर होता है. पहला चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल. राइट. सो कम्युनिकेशन स्किल, इसमें जो बोथ वर्बल एंड रिटन होना चाहिए. तो इफ़ यू लुक एट इट, एनी कम्युनिकेशन स्किल, 2 इनपुट होता है, 2 आउटपुट होता है. इनपुट जो होता है वो रीडिंग एंड लिसनिंग, और आउटपुट जो होता है राइटिंग एंड स्पीकिंग. लॉट ऑफ अस थिंक कम्युनिकेशन इज स्पीकिंग. जब तक आपका इनपुट सही नहीं है, आउटपुट सही नहीं आएगा. करेक्ट. सो यू फोकस ऑन बिल्डिंग योर कम्युनिकेशन स्किल. और दूसरा चीज़ मैं आपको एक 3S फॉर्मूला बताना चाहता हूँ. कम्युनिकेशन स्किल में होती है स्ट्रक्चर, सब्सटेंस एंड स्टाइल. जैसे मैं अभी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर है मेरा दिमाग में. करेक्ट. क्या से शुरू करूँ, कैसे बोलूं और कैसे एंड करूं, ये स्ट्रक्चर होती है. Correct. बहुत सारा लोग को स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं है कम्युनिकेशन में. मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ. मैं हर दिन इंटरव्यूज़ करता हूँ और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करता हूँ हमारा स्टूडेंट्स के लिए. सिंपल पहले क्वेश्चन जो आती है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या वॉक यू थ्रू द रेज्यूमे. वॉट इफ आई टेल यू अर्षित, 90% ऑफ द स्टूडेंट डू अ वेरी बैड जॉब. उनको खुद का जो स्टोरी नहीं बताना आता है, ऑल ओवर द प्लेसेस रहते हैं. तो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा चीज़ आती है सब्सटेंस. वो कंटेंट जो है, क्या बोलना चाहते हो, उसको थोड़ा आप प्रिपेयर करो. कंटेंट जब ही बिल्ड होगा जब आपका रीडिंग इंप्रूव होगा, या आप आज सिर्फ रीडिंग से नहीं, आप शायद पॉडकास्ट से भी हो सकते हैं. टेड टॉक इज अ ग्रेट वे टू लर्न थिंग. और या ब्लॉग पढ़ लो एंड ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. द लास्ट वन इज स्टाइल.
मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब स्ट्रक्चर और सब्सटेंस इज टेकन केयर, स्टाइल का जो एलिमेंट है, देयर आर फ्यू थिंग्स यू शुड नॉट डू. बहुत लोग सोचते हैं कम्युनिकेशन इज स्टाइल. नॉट नेसेसरीली. हम क्या करते हैं, जो ऑन स्टेज को देख के, कुछ अमेजिंग स्पीकर्स को देख के तुम सोचते हो वही उनका जैसा बनेगा तो मैं अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है. ऐसे कुछ नहीं. तो स्टाइल जो है, फ्यू थिंग्स यू नीड टू टेक केयर. आपका जो पेस है वो सही होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, थोड़ा एनर्जी लेके आना चाहिए, एंथुजियाज्म रहना चाहिए उस टॉपिक पे. थोड़ा बहुत ग्रूमिंग कर लो. ऐसे नहीं कि यू हैव टू वेयर एक्सपेंसिव क्लोथिंग, बेसिक ग्रूमिंग कर लो, तो इस चीज से स्टाइल भी निकल जाएगा. सो स्ट्रक्चर, सब्सटेंस एंड स्टाइल विल हेल्प यू टू टेक केयर ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये पहला हो गया आपका सॉफ्ट स्किल्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये लास्ट 3-4 ईयर्स से काफ़ी जगह पे आ रहा है. इसको कोई नहीं सिखाता है. कॉलेज में एक करिकुलम नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, बट डिमांड करते हैं इनसे प्रॉब्लम सॉल्विंग. सही बात है. सो व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? इनफैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, इसमें एक बहुत प्यारा सा एक कोट है, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. वो कार्ल पोपर ने लिखा है. बट क्या होता है, बचपन से हमको बता दिया जाता है प्रॉब्लम से दूर रहो. पता नहीं आपका पेरेंट्स बोला है, मेरा मम्मी तो बोला है आप प्रॉब्लम से दूर रहो. तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को देख के भाग जाते हैं. बट काम में तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का है. क्योंकि अभी जो, जैसे आपने सुना है, इंडस्ट्रियल 4.0 चल रहा है. 1.0 to 2.0 to 3.0 और 4.0 में क्या हुआ है, इट इज अ कोलैबोरेटिव वर्क एंड थिंग्स आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग. कंपनीज को भी पता नहीं है कितने साल वो टिक पाएंगे. while you are worried about your job, right, whether I will survive in the job, company also don't know. जैसे इंडस्ट्री 3.0 में कंपनीज यूज टू सर्वाइव फॉर 35-40 years if they are reasonably good. In 4.0 they are predicting 15 to 18 years and we don't know what's going to happen in the future. So the only company that can survive are the ones जो problem solving करती है. उसीलिए टीम चाहिए जो problem solving करती है. So that's the second one. The third चीज़ जो होती है, adaptability and resilience. So जैसे आपने बोला, आपने शुरू किया as an engineer and then you looked at some other field. जैसे मेरा खुद का स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ. जैसे मैंने शुरू किया सेल्स में, देन सेल्स में काफ़ी टाइम पे था, मैंने ग्रो किया सेल्स में. देन आई रियलाइज दैट माई इंटरेस्ट इज़ इन कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग. तो इसलिए मैं जब इंडिया में आया, आई पिवोटेड टू सेल्स परफॉर्मेंस कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग. देन आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग. तो अभी जो मसाई में मैं कर रहा हूँ, तो काफ़ी फ़र्क है जैसे मैंने करियर शुरू किया था. सो द अडेप्टेबिलिटी एंड रेसिलियंस इज द थर्ड वन. द फोर्थ वन इज टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन. बहुत लोग सोचते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी जॉब्स में, इट इज़ लाइक प्लेइंग चेस, मी एंड माई मशीन. बट एक्चुअली इवन इन टेक्नोलॉजी इट इज़ अ कोलैबोरेटिव स्पोर्ट लाइक फुटबॉल. आपको भी पता है, for any product to be launched, you need a front-end developer, back-end developer, a data person, a product manager, then someone from marketing or from the business. So imagine that you as a front-end developer has to coordinate with all these different teams and departments and come up with a product. So if you can't work in team and collaborate, no way you're going to do well. I have seen a lot of students who did very well technically. They crack the interviews. जब वो कंपनी में गए, within 3 to 6 months they are out. Or some people who were very average in domain skills, but they were good in the soft skills, especially teamwork and collaboration. Companies gave them that person more opportunity. वो टीम लीडर बन गया, वो प्रोजेक्ट लीड बन गया. तो दूसरा आदमी सोच रहा है आई एम बेटर ऑफ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसके पास टीम वर्क और कोलैबोरेशन नहीं है. द फिफ्थ थिंग इज इमोशनल इंटेलिजेंस. अभी क्या हो गया, since that we are brought up in more and more in nuclear family, we have lost certain things that comes when you are together with people, right? Ability to understand your own emotions and other person's emotion. So when you are in team, your emotional intelligence is very important. So these are the few things, Archit, जब soft skills आती है या मैं जो power skills बोलता हूँ, is extremely important. And for students, best time is to pick up when they are in high school. The last opportunity is when they are in college. उसके बाद में बहुत मुश्किल है, 10x हो जाएगा मुश्किल है. मैं इसमें क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो आपने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस, तो जो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ,
तो बॉयफ्रेंड का क्या अच्छा रहता है क्या इमोशनल इंटेलिजेंस जो आपने ऑब्जर्व करा हो, ऐसा होता है क्या? नहीं ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा इससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, एक क्वेश्चन और था, जो आपने हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के बीच में बहुत अच्छा डिफरेंस बताया। आपने रिज्यूम्स देखे होंगे बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के देखे होंगे, तो आपने रिव्यू करा होगा जिस बच्चे का सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा हैं या हार्ड स्किल्स कम हैं, या हार्ड स्किल्स ज़्यादा हैं सॉफ्ट स्किल्स कम है, तो रिक्रूटर किसको ज़्यादा इन करता है? क्योंकि आजकल सब ATS के ऊपर चलता है, बट स्टिल लाइक द कंपनीज लाइक गूगल, उधर पे आज भी आपको एक, जब आप उसमें अप्लाई करते हो, जब आप रिजेक्ट भी हुए तो भी एक बहुत प्यारा मेल आता है और एक ह्यूमन उस चीज़ को मेल करके भेजता है आपको। तो ऐसा आपने क्या देखा है, रिक्रूटर क्या चीज़ पे ज़्यादा सेलेक्ट करता है, हार्ड स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स? एब्सोल्युटली। इसको थोड़ा हम पीछे जाइए और लेट्स लुक एट टिपिकल रिक्रूटमेंट कैसे होता है, एंड आई टेक टेक्नोलॉजी जॉब्स जो मसाई करते आ रही हैं। तो पहले चीज़ें आपका रिज्यूमे पोर्टफोलियो गिटहब से शॉर्टलिस्ट होता है, तो उस टाइम पे आपका लार्जली एलिजिबिलिटी चेक होती है। तो एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है, आपका क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस है क्या, कुछ हार्ड स्किल्स के ऊपर, मुझे जावा डेवलपर चाहिए, थोड़ा बहुत डेटाबेसेस में काम किया वो चाहिए, तो ये हार्ड स्किल है। तो आजकल सब रिज्यूमे एक ही दिखता है अर्चित, क्योंकि सब लोग एक टेम्पलेट उठाते हैं, कैनवा हो गया या रिज्यूमे मेकर और चैट जीपीटी पे चले जाते हैं और उधर से कंटेंट उठाते हैं। तो रिक्रूटर यही बोल रहा है कि हर रिज्यूमे सेम दिख रहा है, तो जब इसीलिए आपका पोर्टफोलियो और गिटहब अच्छा होना चाहिए। तो गिटहब में आपका प्रूफ ऑफ वर्क है, तो ठीक है, ये शॉर्टलिस्ट हो गया आपको। सेकेंड जो होती है, टेक्निकल असाइनमेंट दे दिया जाएगा, वेयर इट इज प्योरली आपका डोमेन स्किल का प्ले है। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉलेज, डोमेन स्किल का प्ले है, राइट? डोमेन स्किल का प्ले है, जो स्किल आपका टेस्ट होता है, आपका नॉलेज कैसे अप्लाई करेंगे और उसको कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। करेक्ट। जब ये होगा आप टेक्निकल इंटरव्यू पे जाएंगे, अब आपका सॉफ्ट स्किल्स या पावर स्किल्स खुलेगा। ओके, राइट? अब तक के लिए मैंने रिज्यूमे में सब डाल सकते हैं, सब लोग डालते हैं, मैं टीम वर्कर हूँ, मैं कोलैबोरेटर हूँ, मैं मेरा एजिलिटी हूँ, अडेप्टेबिलिटी हूँ, तो इसको कैसे बिलीव करेगा इंटरव्यूअर? तो तब वो क्वेश्चंस पूछेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स पहले 5 मिनट में पता चलता है, राइट? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, राइट? इस क्वेश्चंस में मुझे पता चलता है उसका एक स्ट्रक्चर और सब्सटेंस और स्टाइल है क्या, उस लेवल का मुझे चाहिए, राइट? ये वंस दिस गेट्स ओवर, देन आई विल स्टार्ट असेसिंग हिज अदर सॉफ्ट स्किल्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में थोड़ा एक प्रॉब्लम थ्रो करता हूँ और पूछता हूँ आप कैसे सॉल्व करते हो, या आई आस्क क्वेश्चंस लाइक टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर्कड इन अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, एंड उस टाइम पे क्या आपका लर्निंग्स रही है, क्या आपने चैलेंजेस फेस किया है। उस तरीके से मैं ड्रिल डाउन करूँगा कैंडिडेट को। सो उस टाइम पे सी प्लीज अंडरस्टैंड, इंटरव्यूअर जो है वो डेली वो करते आता है और उसको भी मालूम होता है सम पीपल ट्राई टू फेक इट, बट इंटरव्यूअर इज ऑल्सो स्मार्ट। वो थोड़ा बहुत एरर हो सकती है, बट वो आगे पीछे क्वेश्चन पूछ के एंड ही विल बी एबल टू फिगर इट आउट। तो ये हो गया, एंड द फाइनल इज योर HR राउंड या कल्चरल फिट राउंड बोलती है। उसमें थोड़ा बहुत आपका एस्पिरेशंस, मोटिवेशन, कमिटमेंट, ये सब चेक करती है। इफ यू सी दैट द फर्स्ट 2 स्टेप्स आपका डोमेन स्किल से हो गया, हार्ड स्किल्स जो हो गया, द नेक्स्ट 2 इज लार्जली your soft skills, power skills will play a huge role. And I'll tell you, at Masai School itself, when students sit for placement, if 2 students are of same level on domain skill, but let's say student B जो है उसका soft skills बढ़िया है, automatically he'll get 25-30% more salary. Okay. It is proven again and again. It's proven again and again. तो Masai School का जो students हैं, ज़्यादातर लोग भारत से आते हैं। वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। आप बोलो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हमारा स्टूडेंट्स है, एंड लॉट ऑफ देम स्टडीड इन वर्नाकुलर मीडियम, जैसे हिंदी हो गया, कन्नड़ा हो गया, तेलुगु, मलयालम, गुजराती हाई स्कूल में। ओनली व्हेन दे केम टू कॉलेज उनको इंग्लिश में पढ़ाया गया, सो दे कैन रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड, बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक, क्योंकि पहले वो मदर टंग पे सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो उनके लिए क्या हो रहा है, क्यों मैं पढ़ूँ इंग्लिश? तो मैं यही बोलता हूँ, आई एम फ्रॉम कर्नाटक, कन्नड़ा इज माई मदर टंग, ये मेरा मातृभाषा है। मैं विथ माई वाइफ, मदर, चिल्ड्रन, आई स्पीक इन कन्नड़ा, आई वॉच कन्नड़ा मूवीज, आई लव कन्नड़ा सॉन्ग्स, बट इंग्लिश इज माई व्यापार भाषा। मैंने चुना है
कि मैं इस फील्ड पे रहना चाहता हूँ. एंड स्पेशली इफ यू वांट टू वर्क इन एस्पायरिंग कंपनीज, एस्पायरिंग जॉब्स, एस्पायरिंग सैलरीज, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि इनका क्लाइंट्स होती है ओवरसीज का, या इंडिया में ले लो. You may have a team, somebody from Kerala, somebody from Andhra, somebody from Karnataka. They may not know Hindi. And you can't say that I am comfortable only in that, right? So it's good that आप English सीखो, and it is very easy to learn. Very, very easy to learn, and उसको practice करना चाहिए. तो क्या है, communication takes time. At least आप 6 महीने invest करो. और जैसे मैंने पहले बताया, लोग क्या कहेंगे syndrome को हटा दीजिए. It is better to feel bad now than feel bad for your life. Correct. Right? अभी unless you have decided मुझे एक रिटेल में काम करने का है, मैं शायद भोपाल में रहूँगा, मैं एक रिटेल सेटअप में काम करूँगा, फिर not really required. Then most of your clients will speak in Hindi. ये चलेगा. But if you want to work in software or any of the aspiring companies, aspiring jobs, तो English is a good to do. But I'm a big fan of promoter of Matrubhasha, which is good. But along with that, व्यापार भाषा ले लीजिए. व्यापार भाषा भी ले. Why not? Why not? मुझे इसमें एक पॉइंट ऐड करूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने कैसे अपनी इम्प्रूव करी थी. तो मैं क्या करता था, कोई भी वीडियो देखता था, टेड का आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, तो मैं जो स्टॉक के देखता था, जिस भी लैंग्वेज में मुझे अपने कम्युनिकेशन सुधारना, पहले उसको देखता था, फिर उसको मैं बंद करके लिखता था कि क्या लिखा है मैंने. फिर मैं उसको देखता था कि मैंने उस तरीके से उसको देखा है, कितना सही है कितना गलत है. तो एक ये बहुत अच्छा श्योर. इफ सिंस आई ऑल्सो फैसिलिटेट कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं 2-3 टूल्स बताऊंगा मैं आपको. पहले है जूम. मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जूम रीडिंग चैलेंज और जूम स्पीकिंग चैलेंज. ओके. सबके पास जूम है, तो फ्री भी है. जूम ऑन कर लो, जूम के अंदर एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लो, जो आपका इंस्पिरेशनल है. आपको स्पोर्ट्स पसंद है, या सेलिब्रिटी का स्टोरी पसंद है, या कोई फिक्शन पसंद है, कोई भी स्टोरी को सामने रख दो और जोर से बोलो. ओके. और आपका वीडियो ऑन है और आपका ऑडियो ऑन है. 5 मिनट डेली उसके सामने प्रॉप के साथ बोलो, उसको स्टॉप करो और एक बार देखो. 100 डेज एक काम करो. मैं आपको लिख के देता हूँ, 101st डे आपका कैमरा फेसिंग का कॉन्फिडेंस आ जाएगा. Correct. आपका फ्लुएंसी बढ़ेगा, आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा. एंड प्लस आप किसी के सामने नहीं कर रहे हो तो दबाव नहीं है. ये पहले हो गया, ये लेवल 1 है. इसको थोड़ा और कठिन करना चाहते हो तो जूम स्पीकिंग चैलेंज है. डेली कोई भी टॉपिक ले लो, उसके बारे में आपको 2 मिनट बात करने का है. आप ये बात करो आज का ब्रेकफास्ट के बारे में, 2 मिनट बात करो. कोई प्रॉप नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा. या आज ही मैच खत्म हुआ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके बारे में बात करो. या आपका फेवरेट क्रिकेटर ऋषभ पंत के बारे में बात करो. सही बात है. या आपका फेवरेट मूवी में बात करो. या कुछ नहीं तो मैंने ढाबा गया, उस ढाबा में खाना क्या अच्छा था. बट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. इनिशियली आपका मदर टंग एंड इंग्लिश मिक्स करके बात करो, 70-30, फिर उसको रिड्यूस करते जाओ. ये 2 चीज आप करेगा ना, आई एम टेलिंग यू, इन 100 days you will improve. I have had students who are from rural India. एक स्टूडेंट था, शी इज फ्रॉम 80 किलोमीटर्स फ्रॉम मंडी, हिमाचल. मंडी से 80 किलोमीटर्स फर्दर हिमाचल से. तो वो BSc की शी हैड डन, एंड फादर ने बोला टीचर जॉब ले लो. तो उसको क्या हुआ, उस छुट्टी पे वो गुड़गांव आया था. एंड शी फेल इन लव विद गुड़गांव. एंड शी मेड अप हर माइंड, मैं काम करूंगा तो साइबर सिटी में काम करूंगा. तो obviously if you want to work in cyber city, and she wanted technology jobs. तो ऐसे किसी उसका दोस्त ने मसाई स्कूल ज्वाइन किया था, उस बेसिस से she joined us. हम हमेशा पहले वीक में हर स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं. फिर हम बोलते हैं आपके पास 6 महीने हैं अभी एक कोर्स कंप्लीट करने में, आप इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, इवन इफ यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, आपका ड्रीम्स फुलफिल नहीं होगा. शी सिंपली डिड दिस जूम रीडिंग चैलेंज एंड जूम स्पीकिंग चैलेंज. Today she is working in cyber city. Abhi she is SD2, and she also got married to a software engineer. In fact, her father called me and said, if I had not allowed my daughter to go
एंड जॉइन मसाई स्कूल, शायद मैं बहुत गलती करता था. Okay. सो मैं क्या बोल रहा हूँ, इट विल ओपन अप अपॉर्चुनिटीज. उसके लिए आप बहुत मेहनत करना पड़ेगा. जैसे मैं सोचो मुझे 6 पैक्स ऐप बनाने का है, तो मैं 6 महीने तो जाना पड़ेगा जिम में ना. तो सिर्फ मेंबरशिप लेने से कुछ नहीं होगा, जाना पड़ेगा. सो दिस इज समथिंग विच विल वर्क अर्चित. सो आई टेल ऑल द ऑडियंस हु आर लिसनिंग टुडे, मैंने मसाई स्कूल में इसको काफ़ी इम्प्लीमेंट किया है एंड वी हैव सीन ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट. एंड आपको 100 दिन में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा. ओके. एक नॉर्थ इंडियंस या वो साउथ इंडियंस, सबके मन में एक फियर रहता है कि मैंने अगर मान लो कि आईआईटी मेरा क्रैक नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या करियर ख़त्म हो गया, मुझे उतनी हाईएस्ट प्लेसमेंट जॉब नहीं मिलेगी. ये सबके माइंड में एक डर रहता है. तो इस पे आपका क्या कहना है? Okay, I have huge respects for IITs. They are one of the best institute in the country. Yes. My 2 other co-founders are from IIT. Yeah. They are from IIT Kanpur, Pratik और Nupul. मैं IIT नहीं गया है, मैं IIM से हूँ. Having a dream to go to IIT is important क्योंकि आप push करेंगे preparation में, right? Correct. But I will share some number. There are 23 IITs. सिर्फ 17,000 बच्चे लेते हैं. Okay? बट इन इंडिया 1.5 मिलियन इंजीनियर्स ग्रेजुएट करते हैं. दोबारा बताता हूँ, 23 IIT 17,000 स्टूडेंट्स को लेते हैं. इंडिया में कितने इंजीनियर्स आते हैं? 1.5 मिलियन, 15 लाख. वो 0.01% आर फ्रॉम IIT. नाउ क्या होता है, इट इज नॉट दैट ओनली फ्रॉम IIT यू विल बी सक्सेसफुल. देयर यू कैन गो एंड फाइंड आउट देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव बीन सक्सेसफुल. So it's nothing wrong in trying to get there. If you don't get there, there are so many colleges. आप इंडिया में मैंने आपको नंबर बताना भूल गया. Maybe in the next section we will be covering. There are 4,200 engineering colleges. Even if you get into top 100, is good, right? Yes. तो the advantage क्या है when you get into the top colleges? वो जो ecosystem जो बनता है, you are an average of 5. तो वो बढ़ जाता है. So that doesn't mean that if you don't go there, you're not successful. Yes. So I would say that for the students, you must try because आपका push करते हैं, so you will get into other colleges also. It's a good thing to do. Yes. मेरी स्टोरी भी ऐसी थी. मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ था, बट आई डिड नॉट गेट IIT NIT. NIT में मिल रही थी ब्रांचेस, बट वो सेटिस्फाइड नहीं थी मुझे CS. तो I go in the best private engineering college and now I am here. Yes, absolutely. And I work with IIT and student. मेरा प्रीवियस वेंचर जो था जिससे हमने सक्सेसफुल एग्जिट करा, उसका को फाउंडर IITian था. तो आपकी तरह ही स्टोरी थी मेरी. करेक्ट. नाउ गूगल और अमेजोन और एप्पल, ये स्टूडेंट्स में क्या देखते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक ये तो आउट है वेरी क्लियरली. दे लुक एट बोथ डोमेन स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. उसको सॉफ्ट स्किल्स भी बोल सकते हैं. तो डोमेन स्किल्स तो वेरी क्लियर है. आपको जिस कभी डोमेन पे आप काम करना चाहिए उसके ऊपर बहुत अच्छा पकड़ रहना चाहिए. दे लुक एट डेप्थ, सुपरफिशियल नहीं होगा. प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम में 3-4 राउंड होती है, क्योंकि जो टेक स्टैक है वो एक लेवल से इजी से आप कर सकते हो, बट डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम इज द डिफरेंशिएटर. If you want to crack Google, Amazon of the world, you need to have good in data structures algorithm. System design के ऊपर भी बहुत अच्छा पकड़ रहना चाहिए. Now, talking about the employability skills, I want to tell you about Google. They have something called Googliness. हाँ, Googliness. उसमें वो क्या चेक करते हैं? Is the person innovative? Is the person brings something like a collaboration? And can he think outside the box? वो very important है in Google. Amazon में थोड़ा अलग देखती हैं. ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, बायस फॉर एक्शन, उनके प्रिंसिपल्स है ना, उनके प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली वो देखते हैं. इसमें कोई 3-4 तो डेमोन्स्ट्रेट करे इंटरव्यूज में, या इंटर्नशिप्स में जो किया है, या कल्चरल्स में वो पार्टिसिपेट किया है, या क्लब्स को कुछ लीड किया है. सो आई टेल अनदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, दोज 4 years इन योर कॉलेज कैन ट्रेमेंडसली चेंज यू. मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हाई स्कूल में क्या है, जब हाई स्कूल में जाते हो स्टिल पेरेंट्स आर कंट्रोलिंग यू, राइट? को क्या करने का है, किसके साथ जाओगे, किस टाइम पे जाएंगे, किस टाइम पे आएंगे. बट इन कॉलेज यू हैव अ फ्रीडम, यू आर एन अडल्ट, सो यू मस्ट यूज योर टाइम वेल. एंड 4 years इज अ लॉन्ग टाइम. आपका पर्सनैलिटी बदल जाएगा. एंड आई हैव सीन पीपल चेंजिंग कंप्लीटली इन 4 years, बट अनफॉर्चुनेटली मेनी स्टूडेंट्स उस 4 years का वैल्यू नहीं देख रहे हैं.
और they pay a huge price. Correct. So it is what you sow is what you reap, जैसे proverb है. आप उस टाइम पे sow कर रहे हो, फिर पूरा लाइफ उसका रीप कर रहे हो. So use your 4 years very well. 3-4 years जो भी है. तो अब अपन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, भारतीय एजुकेशन सिस्टम. तो एजुकेशन क्या है ये आप बताएंगे? टफ क्वेश्चंस पूछा है अर्जुन. तो मेरे हिसाब से एजुकेशन इज द फाउंडेशन फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ. ओके. तो let's break it down. In India, education is at 3 stages: primary education, high school education and higher education. प्राइमरी एजुकेशन जो होती है 7 साल की होती है. हाँ. और हाई स्कूल पे जाते हैं वो 5 साल की होती है. देन हायर एजुकेशन डिपेंडिंग अपॉन क्या परस्यू करते हैं, कोई 3 साल होगा या 4 साल इंजीनियरिंग होगा, कोई पीजी कर लिया तो और 2 साल ऐड हो जाएगा, कोई पीएचडी कर दिया तो और काफ़ी साल होता है. नाउ द क्वेश्चन इज, ये ख़त्म करने के बाद व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ दैट इंडिविजुअल, राइट? सो मेरे हिसाब से एजुकेशन इज जस्ट नॉट प्रिपेयरिंग यू फॉर द जॉब, एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द लाइफ. करेक्ट. राइट. सो क्योंकि जब जैसे काफ़ी सारा स्टडी हुआ है ऑन फॉर्मेटिव ईयर्स, वेदर इट इज़ इन द प्राइमरी स्कूल स्टेज या हाई स्कूल स्टेज पे, जब द ह्यूमन बीइंग का जो कैपेबिलिटी रहते हैं फॉर्म होती है, उसका जो मैपिंग होती है इन टर्म्स ऑफ द माइंड सेट, इट इज़ लार्जली फ्रोजन बाय द टाइम दे आर 18 ईयर्स. तो ये जो बिल्ड करने का है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज. सो इफ यू आस्क मी व्हाट शुड एजुकेशन बिल्ड यू, इज योर कॉम्पिटेंस. ये कॉम्पिटेंस एक बहुत अच्छा शब्द है, विच इज बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड बिहेवियर. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. सो लेट्स से दैट यू टेल समबडी ये एक कॉम्पिटेंट सेल्स पर्सन है. हाँ, हम बोलते हैं इसको कॉम्पिटेंट. किस बेसिस पे? उसको नॉलेज है. नॉलेज ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट का नॉलेज है. सही बात है. कस्टमर का नॉलेज है, मार्केट का नॉलेज है, कंपटीशन का नॉलेज है. हाँ. मतलब ये नॉलेज तो चाहिए. बट नॉलेज टुडे इज वेरी इजी टू गेट, क्योंकि चैट जीपीटी और गूगल ने दे देते हैं. करेक्ट. बट उस नॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स चाहिए. जब मैं कस्टमर के साथ बात करता हूँ, माई कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, करेक्ट, फॉलो अप स्किल्स, Yeah. ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स, Yeah. क्लोजिंग स्किल्स, नेगोशिएटिंग स्किल्स. तो ये दूसरी पार्ट है स्किल्स. और तीसरी चीज है, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, नॉलेज भी है, स्किल भी है, बट बिहेवियर इज नॉट गुड. Okay. Now, what is behavior? A salesperson has to be disciplined. Salesperson has to be punctual. Salesperson has to be customer oriented. Salesperson has to be ethical, right? So, if you see that, it is knowledge. It is not knowledge plus skill plus behavior. It is knowledge into skill into behavior. Correct. इसको multiplier effect होता है. कोई भी चीज आपका जीरो है तो टोटल इज ऑल्सो जीरो. तो इसीलिए कोई भी फील्ड में, जैसे अभी सेल्स में लिया है, इट इज इक्वली गुड फॉर टीचर. टीचर ले लो, लेट्स से दैट समबडी इज टीचिंग फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स. नॉलेज तो चाहिए, बट नॉलेज अलोन इज नॉट एनफ. डज द टीचर हैव फैसिलिटेशन स्किल्स? Does the teacher have student engagement skill? Correct. Does the teacher have ability to run the session online? Then of course the behavior. Behavior क्या हो सकता है? Value add. Behavior हो सकती है कि I want to learn myself. I'm not just because I'm a PhD or an MTech, I know everything. The growth mindset, वो सब behavior होती है. So education basically is what you become when you complete this process. But many of us think education सिर्फ formal होती है. Not necessarily. There are many ways you can learn today. Today, earlier, largely education was, a Gurukul system जो होती थी. You go in and you come out and you're an educated person. Since things are changing, I think it is a continuous education. And that is where many of us are struggling. हम सोचते हैं कॉलेज खत्म हो गया, एग्जाम खत्म हो गया, मेरा डिग्री मिल गया, मेरा पढ़ना बंद. But actually I'll say the learning starts now. Because at work you're expected to learn on a regular basis. Correct. When technology is changing so fast, market is changing so fast, customers are changing so fast, the only way you can stay relevant is by continuous learning. Yes. And talking about Indian education, Archit, Indian education is massive. Just I'll give you some example. India has 1,100 plus universities, 42,000 colleges. 42,000. Yes, and
India graduates 1.5 million engineers and 8.5 million regular graduates, BA, BCom, BSc. 10 million. 1 crore. हाँ. Lot of countries don't have a population 1 crore, but India graduate हर जून जुलाई में 1 crore students come out with a degree in hand, right? So currently the gross enrollment ratio is 27%. Our government is also promoting. That is important. But the question is, जब student बाहर आता है, उसके पास knowledge, skill और behavior है क्या? Is he competent? That's the question. Yes. It is not what is alone the CGPA. यस. कंट्रीज जहाँ पे एजुकेशन फ्री में है, वहाँ क्या लोगों को जाना चाहिए? हाँ, काफ़ी सारा कंट्रीज हायर एजुकेशन फ्री देते हैं, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज हो गया, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी. बट एट द सेम टाइम पॉपुलर डेस्टिनेशंस लाइक US, Canada, Australia, UK, it's a paid one. Nothing wrong in going and pursuing higher education, especially if they are giving it at free of cost. You can save some money, plus you have an exposure to other country, and why not? But not mandatory. Abhi jo Indian education system is also really good, and it's an individual choice. मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ. There's nothing wrong in doing higher studies. एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है आज के समय में? I think education has been important always, Archit. तो क्या होता था पहले, education was limited to certain socio-economic status people only. But आज इंडिया में education is accessible with very high enrollment. In fact, India has done tremendously well in primary and high school enrollment. Tremendously well. The literacy rate has gone up. The higher education में अभी 23-24% है, उसको गवर्नमेंट इम्प्रूव कर रहे हैं, and they are trying to do that. Now, why education is important? One, it improves your quality of life, provided you are educated. मैं दोबारा उसी पे जाना चाहता हूँ. It is not just degree in hand. Are you competent? या ओके, थोड़ा फर्क है. हाँ. मेरे पास डिग्री है, मेरे पास एजुकेशन है, बट आर यू कॉम्पिटेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. सो इफ एजुकेशन लीड्स टू बिल्डिंग योर कॉम्पिटेंस, यू आर अनस्टॉपेबल. मैं बता रहा हूँ, यू आर अनस्टॉपेबल बिकॉज यू गोइंग टू वर्क फॉर द नेक्स्ट 10, 20, 30, 40 years, and education will help you because it will help you to learn new things. करेक्ट. Right? It's not just about learning what you know, but also learning new things. So वो भी interest है. So your quality of life is better. You will get more opportunities. Third, generally we have seen that जैसे education level बढ़ता जाएगा, because of awareness, the society will get better, will shape better, and healthcare will get better, and in terms of hygiene will be better. काफ़ी सारा follow-up effects है because of education. Plus, generally you see higher GDP countries have higher education. So there is a very strong correlation between education, higher GDP, higher income. So it is good to be invest in education. But again, I go back. It is not just giving a 3 or a 4-year degree. It is about at the end, are you competent? अब मैं आपके फेवरेट टॉपिक पे आने वाला हूँ, जो आपका फेवरेट टॉपिक है 4C+P+D. ठीक है. कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो कैन वी डिस्कस अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे इम्प्रूव करें? सो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इट इज़ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. हाँ. तो वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज क्रिटिकल थिंकिंग. टुडे कंपनीज आर लुकिंग एट नॉट जस्ट डूइंग द जॉब व्हाट इज बीइंग टोल्ड, बट हाउ डू दे इम्प्रूव व्हाट दे आर डूइंग, हाउ डू दे सॉल्व प्रॉब्लम. इस चीज़ के लिए क्रिटिकल थिंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट. Now, how does one improve critical thinking? There are several ways. One, you break down the problems into finer elements. आप brainstorming कर सकते हो. What are pros, cons, and fixes? There are different tools for problem solving. तीसरी चीज़ जो है, आप you can also use certain frameworks to solve problems. And last but not the least, for me, according to me, is iterative process. बहुत सारा चीज़ें आप एकदम सॉल्व नहीं कर सकते हो. You keep doing it, iterative, you can do it. But the most important is you must love problem solving. जैसे मैंने पहले बताया, lot of us run away from problems. Once you start loving to solve the problem, you will find a way to it. And today there are multiple ways you can solve problem. I think you need to live with the problem, think continuously how it can be solved, and try. And never be afraid
ऑफ फेलिंग. कभी भी आप फेल हो जाओगा, इसीलिए मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ. सो क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी इज अ लॉजिकल थिंकिंग. You use several tools that can be applied there. यस. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? So मेरा मेंटर ने बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग को. So पहले चीज़ है इट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, सेकेंड इज क्रिएटिव थिंकिंग, थर्ड इज क्यूरियोसिटी. ओके. ये तीनों चीज़ चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. तो पहले चीज़ वो बोल रहे हैं क्यूरियोसिटी. वाई पीपल आर नॉट गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग? बिकॉज दे आर नॉट क्यूरियस अबाउट द प्रॉब्लम. For example, let's say if Archit want to solve garbage issue in Bangalore, you must be curious, right? तुमको दिख रहा है सामने garbage, but you're not worried about it. How will you solve the problem? But on the other hand, you're very curious. इसको कैसे मैं solve करूँ? Can I convert this into some kind of a product that can be used for something? Can I put the society in place? BBMP के साथ मैं काम कर सकता हूँ क्या? So curiosity is the first step to solve a problem. For example, take the case of how Ola came into existence, right? Yes. So the founder Bhavesh was there waiting for a cab. He didn't get it. Continuously he was struggling. Then he said, "Why don't I launch an app?" And that's how you have Ola today. Yes. Similarly, many of the products are being launched because personally they were very curious to solve them. A little later, I'll tell you, we were very curious to solve employability problem, and that's how Masai also came into existence. The second aspect is critical thinking. उसके बारे में मैं काफ़ी बोल चुका हूँ. Third is creativity. Creativity. Many of us think creativity is something to do with singing or performing arts or painting. Yeah, definitely they are creativity, but creativity could be in any form. Creativity could be in the way you present something. Creativity could be the way you design something. Creativity could be in the way you put together a solution. So creativity is everywhere, and just like muscle, only when you use the muscle it gets built. Only when you use your creativity it builds creativity. What happens is from our childhood ये बता दिया गया आप creative नहीं हो. तो यही प्रॉब्लम है. तो आप खुद को बोलने लगेंगे मैं creative person नहीं हूँ. But actually creativity is with all of us. Creativity is with all of us. तो इसको आप जितना यूज करेंगे, all of us are creative in one way or the other. And initially it looks odd, but eventually if it is trying to solve a problem. So curiosity, creativity and critical thinking all together is problem solving. Yes. एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा. मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं था. हाँ. तो मेरी टीचर जो थी वो हमेशा एक चीज़ बोलती थी, तुम क्रिएटिव नहीं हो. ठीक है. बट जैसा जैसा टाइम बीतता गया तो मैं जब कंपनीज में वर्क ऑन करना स्टार्ट करा तो देन आई रियलाइज कि क्रिएटिविटी उसको नहीं कहते थे. क्रिएटिविटी उसको कहते थे कि जो मैं अपने दिल से कर पा रहा हूँ और मैं क्यूरियस हूँ उसके लिए, और उस चीज़ में कितने लोगों की बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आर सॉल्विंग दैट प्रोडक्ट. तो उससे पता चलता है कि टीचर्स सही कह रहे हो. अपने एजुकेशन सिस्टम में जो K-12 वाला है उसमें बहुत चीज़ें गलत हैं जो सही होनी चाहिए. उसके बाद पैशन को कैसे फिगर आउट करें, ये आज भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है भारत में. ओके, सो मेरे हिसाब से पैशन कम्स फ्रॉम पर्पस. हाँ, पर्पस इज व्हाई यू डू व्हाट यू डू, राइट. जैसे आप अभी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आई थिंक वाइल आप सबको लगता है ये आपका पैशन है, बट एक स्टेप पीछे जाएंगे, कुछ पर्पस है इसीलिए आप कर रहे हो. मे बी यू वॉन्ट टू रीच दिस मैसेज टू अ लार्जर ऑडियंस. करेक्ट. Right? So you need to find out what is a purpose. जब purpose strong रहेगा, why you do what you do, passion निकल के आएगा. And कुछ लोग के लिए बहुत जल्दी आ सकता है, कुछ लोग के लिए लेट आ सकता है. जैसे मेरा ही एग्जाम्पल दूँ, I never knew teaching is my passion. आज भी मैं every day I take classes in Masai School. Okay. Because I'm very passionate about it. मतलब एक दिन भी क्लास नहीं लूँगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ, जैसे इफ़ यू आर रेगुलर टू द जिम और वो जिम नहीं गया, आपका बॉडी कुछ बोलता है ना. सो सिमिलरली इफ आई डोंट टेक अ क्लास आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल. तो डिड आई न्यू व्हेन आई वाज इन कॉलेज? नो. मुझे पहले 15 साल ये पता ही नहीं था मेरा पैशन टीचिंग है. तो इसीलिए एट द एज ऑफ 35 आई शिफ्टेड टू सेल्स परफॉर्मेंस कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग. नाउ इन द लास्ट 7 years 6 years आई एम इन Masai School. So not to get worried. Some people find out the passion very early and they also get opportunity also.
दोनों चीज़ है ना. लेट्स से दैट यू आर पैशनेट टू प्ले क्रिकेट, जैसे यशस्वी जायसवाल का स्टोरी है, एंड फादर ने उसको सपोर्ट भी किया. ही सेड गो हेड एंड ट्राई इट आउट, एंड उसको मुंबई में सपोर्ट भी मिला, द ग्राउंड्समैन हेल्पिंग आउट. तो सबके साथ ये नहीं हो सकता है. करेक्ट, राइट? यू आर पैशनेट बट मे बी इट कैन फिगर आउट समथिंग मच लेटर. मेरा एक गुड फ्रेंड, ही वॉज पैशनेट अबाउट म्यूजिक, बट उस टाइम पे इफ़ यू आर फॉलोइंग म्यूजिक उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं था, और उसको अर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड ही कंटिन्यूड वर्किंग. नाउ द लास्ट 3 years ही हैज़ रीविजिटेड हिज पैशन. अभी वो कंसल्टिंग करता है, एंड हाफ द टाइम ही स्पेंड्स इन म्यूजिक. तो नॉट टू वरी, you will figure it out, and many a times you need to take that bold call to follow your passion. Yes. So sir, what inspired you to start the Masai School? Okay, so I've never been into startups. मैं traditional company में ही काम किया. Started with Asian Paints, then went to Honda, Daewoo, then Mercury International. I met Pratik, who's the co-founder and CEO, and he shared this data. 1.5 million engineers, 8.5 million graduates जो बाहर आते हैं, less than 20% are employable. And if we don't solve the problem now, we are going to face a lot of trouble. That really excited and motivated. And just जब प्रतीक ने ये बताया कि our focus is going to be on skills, not on degrees, and then we will introduce income share agreement or pay after placement agreement, it really motivated me. Then I said that पैशन तो कर लिया, मैंने टीचिंग में मूव किया था इन मर्क्यूरी इंटरनेशनल, बट अभी तक प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं किया. सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम और इम्पैक्ट पे काम करें, एंड दैट इज़ व्हाट मोटिवेटेड, एंड वी स्टार्टेड मसाई स्कूल. यस. पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल जो आपने बोला, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे? एब्सोल्युटली. ये जो मॉडल है, आई थिंक इट इज़ रियली इनोवेटिव एंड फ्यूचर. सो राइट फ्रॉम नर्सरी, प्राइमरी, हाई स्कूल, कॉलेज, हम क्या करते हैं? वी पे फीस अप फ्रंट. एप्लीकेशन फ़ी हो गया, एडमिशन फ़ी हो गया, या सेमेस्टर फ़ी हो गया, एग्जामिनेशन फ़ी हो गया. बट हियर वी आर सेइंग पे आफ्टर प्लेसमेंट. आप जब एनरोल करते हो, डोंट पे एनी फीस, नॉट इवन अ रुपी, बट एक एग्रीमेंट साइन कर लें कि आप एक कोर्स में कमिटेड हो, जैसे इस कोर्स को चाहिए, और आप इस कोर्स के बाद प्लेसमेंट में बैठेंगे, जॉब मिलेगा ऑन योर ओन और थ्रू मसाई स्कूल एट अ मिनिमम लेवल. आप उसको पे आफ्टर प्लेसमेंट, जब भी आपका प्लेसमेंट होगा अगले 36 मंथ्स पे EMI के बेसिस पे आपके बैंक अकाउंट से, आपका सैलरी अकाउंट से पे करेंगे. सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इनोवेटिव मॉडल. यू डोंट पे एनी फी अप फ्रंट, एंड यू पे ओनली व्हेन यू गेट अ जॉब. इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपका 11-11-6 है, उसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे? यस. मसाई, आप कोई भी स्टूडेंट्स मसाई को एक ही शब्द में बोलते हैं, वी आर अ मिलिट्री स्टाइल कोडिंग स्कूल. ओके. हाँ, तो क्योंकि हम जैसे मसाई में जो एनरोल होती है, 70% आर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड. उनके वी हैव गिवन देम ए लाइसेंस टू ड्रीम, दैट आप भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, प्रोवाइडेड आपका मैथ और लॉजिक हाई स्कूल लेवल का सही है, और एक ड्रीम रखती हो, और यू आर मोटिवेटेड टू लर्न एंड अर्न. और जब आप अंदर आते हो, 6 महीने में उनको तैयारी करने के लिए, इट हैज़ टू बी एन इंटेंसिव इमर्सिव प्रोग्राम. तो इसीलिए हमारा जो को-फाउंडर रुपुल एंड हेड ऑफ करिकुलम, ये डिज़ाइन किया कि अगले 6 महीने स्टूडेंट्स कुछ और नहीं सोचेंगे, इसके बारे में ईट, स्लीप, कोड वही करेंगे एंड रिपीट. तो इस बेसिस पे पहले हम जो शुरू किए थे 996 था, 9 AM to 9 PM, 6 days a week, almost 4 years we ran that. Then we found out that since most टेक्नोलॉजी कंपनीज लेट काम करते हैं, सो लेट अस प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फ्रॉम 11 AM to 11 PM. तो ऐसे नहीं कि पूरा 12 घंटा लेक्चर होती है, दिन में 3 लाइव लेक्चर्स होती है और 3 असाइनमेंट्स होती है. तो हमारा जो मॉडल है, लेक्चर असाइनमेंट, लेक्चर असाइनमेंट, लेक्चर असाइनमेंट, सो जो भी वो स्टूडेंट सीखता है इमीडिएटली अप्लाई करते हैं. सो रिमेंबर द फॉर्मूला, नॉलेज प्लस स्किल. एंड व्हाट इज द बिहेवियर? बिहेवियर ऑफ डिसिप्लिन, बिहेवियर ऑफ हार्ड वर्क, बिहेवियर ऑफ परसेवरेंस, बिहेवियर ऑफ रेसिलियंस, ये हम बिल्ड करते हैं. सो व्हेन स्टूडेंट्स कंप्लीट द प्रोग्राम इन मसाई स्कूल, दे आर रेडी टू बी डिप्लॉयड. कंपनीज क्यों आती हैं हमारा पास हायर करने के लिए? वी हैव क्लोज टू 4000 कंपनीज एम्पैनल्ड. उसमें हर महीना 400 एक्टिव रहते हैं. सो उनको पता है जो मसाई स्कूल का
हम हायर करते हैं, दे आर रेडीली डिप्लॉयबल फ्रॉम डे वन Yes. एंड दे आर अवेलेबल पैन इंडिया. Yes. तो वी स्टार्ट अ बैच एवरी मंथ, वी ग्रेजुएट अ बैच एवरी मंथ. सो हमारा सप्लाई इज थ्रू आउट द ईयर. Yeah. कुछ सक्सेस स्टोरीज आप शेयर करोगे मसाई स्कूल की? Definitely, definitely. So, as I told you, Masai School, abhi, we started in 2019 with a small batch of 20 students. Today, we have graduated and placed 6,000 students. Okay. इसमें 70% जो students है रूरल इंडिया से है, who are from non-tech background and economically weaker section है. So, let me start with one student is Aman Kashyap. He is from Uttar Pradesh. He is from Kanpur. तो 12th के बाद ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जेई. फैमिली फिनेंशियल रीज़न की वजह से पापा ने बोला आप काम करने के, वो स्विगी डिलीवरी बॉय बन गया. तो 1 साल के बाद फिनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हुआ. सो पापा ने बोला तो आप पढ़ाई दोबारा शुरू करो. तो डिप्लोमा में एनरोल हुआ था, उसको मज़ा नहीं आया. सो ही केम टू नो अबाउट मसाई स्कूल एंड ही जॉइंड. तो अभी वो स्विगी डेवलपर है. क्या बात. सो कैन यू इमेजिन ए स्विगी डिलीवरी बॉय टू ए स्विगी डेवलपर. बैंगलोर में काम करता है एंड ही इज़ जस्ट ए 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, बट ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. उसको टाइम लगा, 3 महीने लगा क्रैक करने में, बट जब क्रैक किया, बढ़िया क्रैक किया. एंड रिसेंटली ही वॉज अवॉर्डेड ऑल्सो इन स्विगी फॉर हिज परफॉर्मेंस. द सेकेंड इज फ्रॉम आवर फर्स्ट बैच, सुमंता मालिक. ही इज़ फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड बालेश्वर इन ओडिशा. फादर अ फार्मर. In fact, he used to drive tractor जब कॉलेज जाता था to earn some income so that he can take care of his education. तो एजुकेशन के बाद बेंगलोर आया, जॉब ढूंढा. 6 महीने तक जॉब नहीं मिला. He used to stay with his friends who are security guards in Marathalli. And then he came to know about Masai School. 6 महीने काम किया. अभी he is SD2 in LegalZoom, a US-based company, earning very well salary. And he has taken care of his family, got married. काफ़ी सारा चीज़ हुआ है. और थर्ड स्टूडेंट जो इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, हर नेम इज़ पारस जम्बाल, जिसे मैंने आपको भी बताया था. शी वॉज फ्रॉम हिमाचल, मंडी से है. इफ़ नॉट फॉर दिस कोर्स शी वुड हैव बीन अ टीचर इन दैट स्मॉल टाउन, बट टुडे शी इज़ परस्यूइंग इन साइबर सिटी इन गुड़गांव. वन मोर स्टूडेंट्स आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट इज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम मुंगेर, बिहार, आशीष राज. बहुत बढ़िया कहानी है. तो वो मुंगेर से भोपाल आया, आपका शहर. अरे. तो वो क्या BSc, बहुत कॉप था टेक में काम करने के लिए. वो एक्चुअली गॉट इंस्पायर्ड बाय हिज जीजू. उसका कुछ चलाते थे वो सॉफ्टवेयर में. तो उसके बाद में प्लेसमेंट नहीं हुआ कॉलेज में. ही बिकेम अ ऊबर ड्राइवर. ओके. बिकॉज फैमिली का सिचुएशन बहुत ख़राब था और जॉब नहीं मिल रही थी. तो ऑलमोस्ट 1 साल ऊबर चल रहा था. तो एक दिन वो क्लाइंट को वेट कर रहा था, तो यूट्यूब में कुछ देख रहा था, मसाई का कोई वीडियो आ गया. फिर बोला मैं लाइफ चेंज करूँगा, तो मसाई ज्वाइन किया. सो ही इज़ वन ऑफ आवर पोस्टर बॉयज. टुडे इज़ वर्किंग इन SD2 इन अ फिनटेक कंपनी इन गुड़गांव. सो दीज आर सम ऑफ द स्टोरीज. आपको मैं इन्वाइट करूँगा टू आवर वेबसाइट. वी हैव लॉन्च्ड अ बुक कॉल्ड Impact 101 series. From this 6,000 students, 101 students जो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी हुआ है, तो उसके ऊपर एक बुक हमने रिलीज़ किया है रिसेंटली. एंड आई इन्वाइट ऑल आवर व्यूअर्स टू गो एंड सी देम देयर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी. जैसे मैंने बताया 70% जो स्टूडेंट्स है मसाई का, वो भारत से है. दे हैव बिग ड्रीम्स. द फैमिलीज आर फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड. So I can go on and on, Archit, because each of these students are connected with me in one way or the other. आपका नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है मसाई स्कूल के लिए? So we have only scratched the surface, Archit. अभी जो हमने graduate and place 6,000 students किया है, we want to help 1 million people to get skilled and employable. Personally, I have a goal of helping 10 million people to speak English fluently. तो ऐसे सब बड़ा बड़ा गोल्स है. वी आर वेरी कीन हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिकॉज इफ इंडिया हैज़ टू बी अ विकसित भारत बाय 2047, द ओनली वे इट कैन हैपन इज व्हेन द पॉपुलेशन जो यूथ है इज स्किल्ड एंड दे कैन कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे. इट कुड बी इन टेक, इट कुड बी इन प्रोडक्शन, इट कुड बी इन मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर. मतलब बहुत सारा ऑप्शंस है. उसके लिए एक थिंग तो कॉमन है, यू नीड टू हैव द स्किल सेट, माइंडसेट एंड टूल सेट. कोई भी आप डोमेन पे ले लीजिए. तो ये तीनों चीज़ चाहिए. हम इसके ऊपर काम करेंगे. अभी टेक ऑफर कर रहे हैं. मे बी इन द कमिंग years we will also offer maybe in healthcare, maybe in different fields. तो अभी तक सोचा नहीं है, but definitely we want to solve that problem of skilling the youth and getting them employed. Correct.
थैंक यू सो मच योगेश सर, आपने इतना टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए। Yes. और ये पॉडकास्ट डेफिनेटली हेल्प करेगा एक ग्लोबल जॉब मार्केट को समझने के लिए। तो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच अर्चित। एंड फॉर द व्यूअर्स, वेरी सिंपल, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी मसाई प्रोग्राम, हमारा हाँ। वेबसाइट पे आइए। हाँ। वी स्टार्ट अ बैच एवरी मंथ एंड जस्ट यू नीड टू एनरोल एनीवन फ्रॉम 18 to 28 years, 12th standard हो गया, दे कैन एनरोल इनटू either as a software developer or a data analyst or a software testing role. And one thing, they need to be disciplined, they need to be hardworking, perseverance and resilience. In fact, my favorite movie is Manji. हम स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं, दशरथ मांझी का जो फेमस डायलॉग है, जब क्या बोलते हो, तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ूंगा नहीं। तो दैट ही वही है, मैं बोल रहा हूँ उनको, पता इट डजेंट मैटर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, यू आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, पापा फार्मर है या कोई छोटे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, एज लॉन्ग यू हैव अ डिवाइस, हार्ड डेस्कटॉप और अ लैपटॉप, इंटरनेट है, डोंट वरी, यू कैन डू वेल। थैंक यू अर्चित फॉर इन्वाइटिंग एंड लुक फॉरवर्ड। कोई अगर आपका कोड हो जिससे बच्चों को फायदा तो बताओ, हम डिस्क्रिप्शन में जरूर डालेंगे। रिगार्डिंग मसाई स्कूल में एनरोलमेंट में इफ एनी डिस्काउंट यू नो, वी डोंट चार्ज एनी फीस। अच्छा, हाँ, तो कोड का बात ही नहीं है। अच्छा, तो, एक मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी थी, आपने जो एग्जांपल्स शेयर करा 12th क्लास के स्टूडेंट, तो कोई ज़रूरी नहीं है उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो या क्या, कितना एक आप एज मांगते हो? 18 to 28। 18 to 28 के बीच में बच्चा लाई करना चाहिए। तो अगर 18 साल का कोई बच्चा है तो वो आराम से एनरोल कर सकता है। Absolutely. उसके पास कॉलेज की डिग्री नहीं हो तो भी करेगा। दैट्स ग्रेट। 20% of our batch is 12th standard. ओह, करेक्ट। तो इसमें तो फिर बहुत फ़ायदा है, ये तो विन विन सिचुएशन है उसके लिए कि उसके पास अगर पैसा भी नहीं है तो वो आपके पास आएगा। मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, सेल्फ बिलीफ रहना चाहिए, बिलीफ इन मसाई में चाहिए, हाँ, तभी होगा। करेक्ट। थैंक यू सो मच आपकी जर्नी समझने के लिए। थैंक यू, वंडरफुल।